इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं अपने लीडर, अपने कायद, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि उसने मुझ जैसे एक अदना वर्कर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है, और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहां तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं جماعة إفريقيا الزمور تسوم میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ تو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اپنا پہلا خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے میرے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ میں پہلے پاکستانی ہوں پھر قبائلی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو اور شریف نہیں لگتا، پرچی پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا، اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، تمام اراکین اسمبلی کا مشکور ہوں، ایسا کہنا ہے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا۔ میرا سیاست کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایسا کہنا ہے سہیل آفریدی کا۔ وہ کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ مزید کہا کہ میرے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اور اس کے بعد قبائلی ہوں۔ میرے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو اور شریف نہیں لگتا ہے، پرچی پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا، اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، تمام اراکین اسمبلی کا مشکور ہوں، ایسا کہنا ہے سہیل آفریدی کا۔ وہ کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے سنو نیوز سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے پروسیس کو نہیں مانتا، علی امین گنڈاپور کا بدھ کو سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں انتظار کروں گا، نئے وزیر اعلیٰ کے پی کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، ایسا کہنا ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پروسیس کو نہیں مانتا، میرے لیے اب تک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سہیل آفریدی کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، اور آج کے اجلاس کی بات کریں تو اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، جبکہ فیصل کریم کنڈی جنہوں نے ابھی تک علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، اور ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کے اس پروسیس کو نہیں مانتا، کسی کو خواہش پر بننے والے نئے وزیر اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ میرے لیے اب تک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے سنو نیوز سے خصوصی طور پر بات کی، اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آج کے پروسیس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ مزید انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ علی امین گنڈاپور کا بدھ کو سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس پشاور میں
इंतज़ार करूँगा। नए वज़ीर आला KP को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। जबकि किसी की ख्वाहिश पर बनने वाले नए वज़ीर आला को तस्लीम नहीं करता, ऐसा कहना है फैसल करीम कुंडी का। जबकि दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं। उनका ये पहला ख़िताब है और ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं लगता है, मेरे नाम के साथ आफरीदी लगता है और मेरे ख़ानदान वाले सियासत में नहीं हैं। ये लोग समझते हैं कि कबायली सिर्फ मरने के लिए हैं, ऐसा कहना है सुहेल आफरीदी का। मज़ीद कहा कि पर्ची पर वज़ीर आला नहीं बना, अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। तमाम अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अपना पहला ख़िताब कर रहे हैं और पहला ख़िताब करते हुए उनका कहना था कि मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले सियासत में नहीं हैं। जबकि मज़ीद कहा कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अली अमीन गंडापुर ने 2 बार अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा, लेकिन गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। मेरे ख़ानदान में कोई सियासत में नहीं है, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मज़ीद कहा कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ और उसके बाद कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं लगता है। मज़ीद कहा कि मेरे नाम के साथ आफरीदी लगता है और ये लोग समझते हैं कि कबायली सिर्फ मरने के लिए हैं। मोहम्मद सुहेल आफरीदी जो कि KP के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, उन्हें 90 MPs ने वोट कास्ट किया है, जबकि अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला सामने आया है। सुहेल आफरीदी का ये पहला खिताब है और वो अपना पहला खिताब कर रहे हैं और पहला खिताब करते हुए उन्होंने सबसे पहले तमाम सूबाई असम्बली के अरकान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें वोट कास्ट किया। जिसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन भी पेश किया। आज की कार्रवाई की बात करें तो अली अमीन गंडापुर ने भी इजहार ख्याल किया और आज उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की। उनका कहना था कि 2 दफ़ा अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा, जिसके बाद आज यहाँ पर भी खड़े होकर कहता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। बानी तहरीक इंसाफ ने मुझे इस्तीफ़े का कहा और मैंने उनकी बात मानते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जिसके बाद हमने देखा कि जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने इजहार ख्याल किया। जब वो इजहार ख्याल कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा था और उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है। हमारे लिए अभी भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, इसलिए नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो इब्हाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़े बना रहे हैं। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद अपोजिशन ने इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने अपोजिशन लीडर के खिताब के बाद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस्तीफ़े का ऐलान किया। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। आइन के मुताबिक तमाम तर कार्रवाई करेंगे। बाबर सलीम सवाती ने इस हवाले से रूलिंग पढ़ते हुए कहा कि नए कायदे ऐवान का तरीका आइन के मुताबिक होगा, जिसके बाद मुंतखब वज़ीर आला के नाम का ऐलान होगा। स्पीकर KP असम्बली ने नए कायदे ऐवान को मुंतखब करने का तरीका बताया, जिसके बाद असम्बली में वोटिंग हुई और फिर 90 MPs ने सुहेल आफरीदी को KP का नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सुहेल आफरीदी मुंतखब होने के बाद अपना पहला खिताब कर रहे हैं और पहला खिताब करते हुए उनका कहना था कि एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ और मज़ीद कहा कि मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, जबकि मैं मेहनत करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। सूबे को आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और मज़ीद कहा कि मैं इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हूँ। अपने बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि मेरे ख़ानदान में कोई भी सियासत में नहीं है और मुझे फ़ख्र है कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ और उसके बाद मैं कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं लगता। जबकि मज़ीद कहा कि मेरे नाम के साथ आफरीदी लगता है और मैं मेहनत करूँगा और तमाम चैलेंजेस से निपटूँ।